Hi students, Standard 5th, Subject English. I am back to you with chapter number 2 Daydream. आज हम लेसन नंबर 2 देखेंगे जिसमें दो कपल्स हैं. They are dreaming in a daytime and it is a very interesting story. I hope you will enjoy it. Please before starting this, subscribe my channel and press bell icon to get more notifications and upcoming videos. And if you like this, so please press on like button. So I'm starting my video. Please stay with it and enjoy it. Our lesson, daydreams. In this, we can have the two couples, those who are passing their daytime by sitting in their house and they are talking with each other. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day, the husband said, idle talk means a lazy talk means they were passing out their time by sitting beside them. The husband says, I have always wanted to keep a cow. Means he wanted to keep a cow. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. Means they were talking with each other and husband desired their wish that he always want to keep a cow, and if he will get a money from somewhere, so he will buy a cow. But that means a lot of work. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. Wife said, if you'll buy another one, so will be a lot of work like feeding the cow, walking them, bath them, and milk them. So we have a one cow. It is enough for us. Don't buy the second one. And they were talking each other like this way. Afterwards, but thinks of the milk we will get if you buy more, said the husband. Husband said, if you'll buy a cow, then we will get a more milk. That's true, the wife agreed. Yes, we will get it. There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. वाइफ ने कहा कि हाँ ये सही है, अगर हम और काव रखते हैं तो हमें बहुत सारा प्लेंटी ऑफ दही बटर एंड घी मिलेगा. प्लेंटी मीन्स सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा. वुडंट इट बी लवली, तो ये क्या अच्छा नहीं होगा. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. देखो, इसलिए मैंने, वाइफ कहती है, इसलिए मैंने पहले से ही मट्टी के बर्तन बचा के रखे हैं ये सब रखने के लिए. आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स ऑफ मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर द बटर. मीन्स उसने कहा कि मैंने एक दूध के लिए, एक दही के लिए और बटर के लिए अलग अलग बर्तन रखे हुए हैं. आई विल पुट इन अनदर जार, मैं उन्हें सब जार में रखूँगी. एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट्स ऑफ सेंड मिल्क टू माई सिस्टर. वाइफ क्या कहती है, लेकिन जो दूध का रहेगा बचा हुआ दूध मैं अपनी बहन के यहाँ भेजूंगी. तो उस पर हस्बैंड क्या कहता है, सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. हस्बैंड कहते हैं जो दूध बचेगा वो अपनी बहन के यहाँ भेजने वाली हो. तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी बहन के यहाँ भेज सकती हो. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मेनी काउज. अगर हम और काव रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारा दूध होगा. वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, तो तुम इसे अपनी बहन के यहाँ क्यों भेजोगी. बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट. वाइफ जब कहती है तो मैं अपनी बहन के यहाँ क्यों नहीं भेज सकती, इतना दूध होगा तो. हस्बैंड क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई, क्योंकि हम इसे जाके बाजार में बेचेंगे, इसलिए तुम इसे अपनी बहन के यहाँ नहीं भेज सकती. आई विल डिसाइड दैट वॉट टू डू विद ऑल दैट मिल्क. हस्बैंड कहता है कि हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है. एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर. रिमेंबर, याद रखना, तुम्हारी बहन के यहाँ एक भी बूंद दूध का नहीं जाएगा. Then after, the chat goes on, I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister.
बीवी चिल्लाती है पति को कि देखती हूँ मैं, तुम भी कैसे मुझे रोकते हो मेरी बहन के यहाँ दूध भेजने से। I do all the hard work running after the cows so naturally. I decide that to happen to the milk. Just try stopping me. He The wife exclaimed, means wife चिल्लाकर कहती है, exclaimed means cried suddenly in a surprise, that कि मैं सारा काम करूँगी, दूध निकालना, गाय को फीड करना, सारा चीज़ मैं करूँगी, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते मेरी बहन के यहाँ दूध ले जाने से। लास्ट लाइन देखिए, इज दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड। हस्बैंड ने जोर से चिल्लाया कि ऐसी बात है, वॉच दिस देन, तो फिर देखो क्या करता हूँ मैं। ही बिगिन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट वन बाय वन। ही स्टार्टेड टू throwing one by one all pot he started to throw. His wife began to scream. Now when husband thrown all the pots one by one, his wife began to scream, means she afraid of it. These all things were happened in their house, but the neighbor Mr. Gopal Bhand was listening this. The Gopal Bhand who was passing by heard all the commotion. Commotion means a state of confusion. Means he was listening all the things and rushed inside. और वो घर के अंदर आ जाते हैं. When he heard what had happened, he picked up a stouted stick and stood in a corner and began to swish. Means stout means strong and thick. You can see here the stick is so stout and stout stick. It is a strong and thick stick, and started swinging. Means swishing means moving. He began to swish it through the air and pound it on the floor. Means वो छड़ी हवा में जोर जोर से हिलाने लगे एंड जोर जोर से जमीन पर क्या करने लगे, पाउंड करने लगे, यानी छड़ी को जोर जोर से हिट करने लगे जमीन पे. The husband and wife were both astounded. Astounded means greatly surprised. ये बगल वाले पड़ोसी हमारे घर पर आकर ऐसी छड़ी क्यों जोर जोर से पटक रहे हैं. मीन्स वे लोग बहुत सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. टू सी दिस एंटिक्स मीन्स ये जो पुलिस कारनामा. मिस्टर गोपाल भांड केम इनटू द हाउस एंड स्टार्टेड टू pounding that stick on the floor. They were both astounded and by looking this antics. What are you doing? They inquired. दोनों ने पूछा, हस्बैंड एंड वाइफ ने, मिस्टर भांड what are you doing? Then after Mr. Bhand replied, move aside, said Gopal Bhand. Gopal Bhand ने कहा, दूर हटो. I have the drive away your greedy cows. मैं तुम्हारे लालची गाय को भगाने आया हूँ. Means you have let me wander and now they have ruined my field of beans and cucumber. You have let me wander and now they have ruined my field of beans and cucumber. Oh my lovely field of beans and cucumber. कहते हैं कि तुम्हारी गाय ने मेरे खेतों में जाकर, मेरे बीन्स के खेतों में, मेरे कुकुम्बर के खेतों में जाकर क्या कर दिया, पूरी तरह से उसे खराब कर दिया. वांडर मीन्स वॉक टू मूव. मीन्स तुम लोगों ने अपनी गाय छोड़ दी और जिसकी वजह से तुम्हारी गाय ने मेरे बीन्स और कुकुम्बर के पूरे खेत क्या कर दिए, खराब कर दिए. तो but you don't have a field of beans and cucumber. पर्सन कहते हैं कि मिस्टर भांड, यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ अ बीन्स और कुकुम्बर, लेकिन तुम्हारे पास तो बीन्स और कुकुम्बर की खेती नहीं है, तो हमारी गाय ने वो कैसे खराब कर दिया. As soon as he said, the Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. जैसे ही हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पास तो खेती नहीं है, तो वैसे ही गोपाल भांड ने छड़ी हिलाना और पटकना बंद कर दिया और अपनी ऊंची आईब्रो से, मीन्स आईब्रो को ऊंचा करके उन दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ देखने लगे. द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही ट्राइंग टू टेल देम. हस्बैंड और वाइफ समझ गए कि मिस्टर भांड उन्हें क्या समझाना चाहते थे. कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, तो क्या आप समझा सकते हैं. यही समझाना चाहते थे कि जिस तरह आप दिन में बैठे बैठे सपने देख रहे हैं कि हम काऊ ले लेंगे, बहुत सारा दूध आएगा और उस दूध को हम बेचेंगे. वाइफ कहती है नहीं मैं अपनी बहन के यहाँ दूंगी, तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होने लगता. मीन्स विदाउट एनी रीज़न. ये लोग तो सिर्फ सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता तो. अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं जो असलियत में नहीं है और उस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मिस्टर भांड भी आए, जिनके पास कोई कुकुम्बर या
बीन्स का खेत नहीं था, दे वर नॉट, ही वॉज नॉट हैविंग एनी कोकुम्बर और बीन्स फील्ड, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई टू लेट देम एक्सप्लेन वाई यू आर फाइटिंग विच इज़ नॉट इन रियल। जो आप दिन में सपने देख रहे हैं उस चीज़ के लिए आप क्यों झगड़ रहे हैं, तो ये समझाने के लिए वहाँ पर आए थे। आई होप ये आप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर, डे ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट डिड द हस्बैंड वांटेड टू बाय? द हस्बैंड वांटेड टू बाय अ cow. Second question, what plans did the wife make? मीन्स बीवी ने कौन सा प्लान बनाया था? द वाइफ वांटेड टू use earthen pots of milk, dahi, butter and ghee. She also wanted to send milk to her sister. तीसरा, what did the husband want to do with the extra milk? The husband wanted to sell the extra milk in the market. And the fourth question, what did Gopal Bhand say he was doing? Gopal Bhand says that he was driving away the greedy cow from his field of beans and cucumber. Here is the next fifth question. Did Gopal Bhand have a field? No, Gopal Bhand did not have a field. Sixth, what did Gopal Bhand wanted to tell the husband and wife? Gopal Bhand wanted to tell the couple that they both are in daydream. दिन में सपने देख रहे हैं. Seventh question, what is the difference between daydream and daydream? सपने देखने और दिन में सपने देखने में क्या फ़र्क है, देखिए देखते हैं। ड्रीम इज़ अ सीरीज ऑफ थॉट्स, इमेजेस एंड सेंसेशन ऑकरिंग इन अ पर्सन माइंड ड्यूरिंग द स्लीप। ये रात के समय जब हम सो कर सपना देखते हैं उसे ड्रीम कहते हैं। डे ड्रीम इज द सीरीज ऑफ अ प्लीजेंट थॉट अबाउट समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट वंस अटेंशन फ्रॉम द प्रेजेंट। यानी दिन में बैठकर जो हम सपना देखते हैं उसे कहते हैं डे ड्रीम। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, press bell icon for upcoming videos and enjoy this, and if you love this video please press like button.